everyone. I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty, Vidya Mandiri Classes, HL Korwa. This week is Olympiad week and today we are going to discuss DPP1 and there are 10 questions based on topic motion and light, shadow and reflection. So all these questions are single correct. Let's start from question number 1. Question number 1 says that 1 angstrom is equal to, ये जो सिंबल है कैपिटल ए और उसके ऊपर एक छोटा सा बबल, तो इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम. तो क्वेश्चन ये 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज 10 to the power minus 2 centimeter, ऑप्शन बी इज 10 to the power minus 4 centimeter, ऑप्शन सी इज 10 to the power minus 12 centimeter and option D is 10 to the power minus 8 centimeter. We know that 1 angstrom equals to 10 to the power minus 10 meter and 1 meter equals to 10 to the power 2 centimeter because answers are in the centimeter. Options जो है वो सेंटीमीटर में है, तो हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा. 1 angstrom equals to 10 to the power minus 10 मीटर और फिर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 to the power 2 से, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 10 to the power 2 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 2, that is 10 to the power minus 8 centimeter. So the right answer will be option D. This will be the right answer, 10 to the power minus 8 centimeter. Now come to the question number 2. 1 centimeter square equals, fill in the blank से, how many meter square. तो यहाँ पे हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है. ऑप्शंस आर 10 to the power minus 2, 10 to the power 2, 10 to the power 4 and 10 to the power minus 4. तो we know that 1 centimeter equals to 10 to the power minus 2 meter because 1 meter equals to 10 to the power 2 centimeter. So 1 centimeter equals to 10 to the power minus 2 meter. So अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी 1 into 10 to the power minus 2 मीटर का स्क्वायर. तो 10 to the power minus 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 to the power minus 4. So the right answer will be option D, that is 10 to the power minus 4 meter square. Question number 3. 1 sec is equal to, options are, option number 1, option number A is 10 to the power minus 3 second, option B is 10 to the power minus 6 second, option C is 10 to the power minus 8 second and option D is 10 to the power minus 10 second. So 1 sec, it is a smaller unit of time and it is equal to 10 nanosecond. ये 10 nanosecond के बराबर का एक टाइम की यूनिट है 1 सेक. तो नैनो सेकेंड क्या होता है, 10 to the power minus 9 सेकेंड. सो 1 सेक विल बी 10 to the power minus 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 सेकेंड. तो 10 into 10 to the power minus 9 हो गया, दैट इज 10 to the power minus 8 सेकेंड. तो इस तरीके से 1 सेक विल बी इक्वल टू 10 to the power minus 8 सेकेंड. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. 10 किलोमीटर इज इक्वल टू, option A is 10 to the power 12 mm, 10 to the power minus 7 mm, option C is 10 to the power 7 mm and option D is 10 to the power 3 mm. तो हमें यहाँ पे किलोमीटर को mm में चेंज करना है मिलीमीटर में, and we know that 1 kilometer equals to 10 to the power 3 meter and 1 meter equals to 10 to the power 3 mm. तो हमें यहाँ पे 1 किलोमीटर को mm में चेंज कर लेते हैं, फिर 10 किलोमीटर को हम चेंज कर लेंगे. तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 3, ये mm हो गया, दैट इज 10 to the power 6 mm. दैट इज 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 to the power 6 mm. सो हियर वी हैव टू कन्वर्ट 10 किलोमीटर इंटू mm. सो 10 किलोमीटर विल बी इक्वल्स टू 10 into 10 to the power 6 mm. And it will comes out to be 10 to the power 7 mm. So the right answer will be option C, 10 to the power 7 mm. Now come to the question number 5.
if the position of a body changes with time with respect to a stationary body, then the body is said to be, option A is in motion, option B is in random motion, option C is in linear motion, and option D is at rest. So यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ द बॉडी है वो टाइम के साथ साथ किसी स्टेशनरी बॉडी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम बॉडी को बोलेंगे वो मोशन में है, इट इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज इन मोशन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. द लाइट रे विच रिटर्न्स आफ्टर स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड. तो एक लाइट रे है, एक स्मूथ सरफेस से वो जो है इंसिडेंट हो रही है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिटर्न हो रही है सेम पाथ में, सेम मीडियम में. द लाइट रे विच रिटर्न्स आफ्टर स्ट्राइकिंग ए स्मूथ सरफेस. तो जो लाइट रे रिटर्न हो रही है हमें उसके बारे में पूछा गया है. ऑप्शंस आर इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नन ऑफ दीज. तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगा क्योंकि वो लाइट इंसिडेंट हो रही है स्मूथ सरफेस से और फिर वो रिटर्न हो जा रही है, तो उस रे को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे. और जो इंसिडेंट हो रही है रे उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. इमेज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा इज. ऑप्शन ए इज इरेक्ट, ऑप्शन बी इज इन्वर्टेड, ऑप्शन सी इज ए एंड बी बोथ, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे पिन होल कैमरा से इमेज के बारे में पूछा है कि जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा. अलाइनमेंट पूछा गया है, इरेक्ट, इन्वर्टेड, बोथ एंड नन. तो जो पिन होल कैमरा से जो इमेज बनता है वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है. तो ये जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन बी, दैट इज इन्वर्टेड. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज. तो यहाँ पे प्लेन मिरर से इमेज के बारे में पूछा गया है कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी होगी. ऑप्शन ए इज इरेक्ट, ऑप्शन बी इज इन्वर्टेड, ऑप्शन सी इज इरेक्ट बट लैटरली इन्वर्टेड, एंड ऑप्शन डी इज नन. तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल जो आंसर हो जाएगा वो सी रहेगा, इरेक्ट बट लैटरली इन्वर्टेड. यहाँ पे लैटरल इन्वर्जन होता है और लाइट और जो इससे इमेज बनेगी वो इरेक्ट भी बनेगी. तो मोस्ट सुटेबल आंसर विल बी ऑप्शन डी. तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक का जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है वो आप लोग को क्लियर होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन फ्री टू आस्क योर क्वेरी. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.